Question is related with quantum mechanics. One-dimensional harmonic oscillator. Very important question. Average potential energy of one-dimensional harmonic oscillator in its ground state is. Four options are given. Student, you know how to write wave function or eigenstate or eigenfunction of harmonic oscillator. For it, we need three ingredients. One is normalization constant, second is Hermite polynomial of order n, third is Gaussian function. This is Gaussian function e to power minus alpha square x square over 2. This is Hermite polynomial. This is normalization constant, which we evaluated by using normalization condition integral psi n star psi n dx within limit minus infinity to infinity is equal to 1. But he has asked me in ground state, and we know for ground state n equal to 0. So linear harmonic oscillator ground state wave function correspond to n equal to 0. Where there is n, we have written 0. And 0 factorial is 1, 2 to the power 0 is 1. H suffix 0, Hermite polynomial of order 0 is always 1. And alpha, we defined alpha square in beginning of article of harmonic oscillator, we defined it as root km over h square. K is a stiffness constant or spring factor. You know K is equal to m omega square. Okay, alpha square is root km over h cross, as you know, reduced Planck constant. So this is wave function of harmonic oscillator when it is in ground state. This is sketch of ground state of harmonic oscillator. Psi 0x versus x. Now I come to question average potential energy. This is symbol of expectation value of potential energy. Expectation value of potential energy or mean value of potential energy or average value of potential energy. How to find this average V? Average V mean this is integral psi star V psi dx limit minus infinity to infinity. Psi is complex conjugate function, psi star is complex. Psi is complex wave function, psi star is complex conjugate wave function. But here iota is not there. So this is psi star also. So when psi and psi star multiplied, तो ये पावर जो हाफ है वो ये सिंगल बन जाएगी और ये पावर अल्फा बाई रूट पाई की पावर हाफ इंटू अल्फा बाई रूट पाई की पावर हाफ, दैट इज अल्फा बाई रूट पाई, दैट इज कांस्टेंट टेकन आउटसाइड. और V potential energy, that is we know harmonic oscillator में potential energy is always half kx square, which is spring potential energy, you know very well. And dx is variable of integration and limits are extended from x की limit minus infinite से infinite. Constant half k is constant. अब ये इंटीग्रेशन वर्कआउट करना है. ये इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन होता है f of minus x इक्वल टू f of x. और इवन फंक्शन में ये लिमिट जो है डबली फैक्टर आ जाता है और ये लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के इसमें चेंज हो जाता है 0 से इन्फिनिटी. अब ये इंटीग्रेशन जो वर्कआउट करने के लिए स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ. यू शुड रिटेन दिस फार्मूला. इंटीग्रल e to power minus beta x square x to power n dx limit 0 to infinity is equal to gamma bracket n plus 1 by 2 और 2 बीटा raised to power n plus 1 by 2. दोनों को कंपेयर करिए. यहाँ पे x की पावर n, यहाँ पे x की पावर 2, तो n की वैल्यू 2. तो 2 plus 1 यानी 3 by 2, तो गामा 3 by 2. यहाँ पे बीटा की पावर 3 by 2. प्लीज रिमेंबर वैल्यू ऑफ गामा हाफ इज रूट पाई. सो एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 2 से 2 कैंसिल और ये इंटीग्रेशन मैंने अलग से सॉल्व करके बताया. एन यहाँ मैं कंपेयर किया तो 2 यानी गामा 3 by 2 और 2 बीटा की पावर 3 by 2 और बीटा e to power माइनस बीटा एक्स स्क्वायर के साथ बीटा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ अल्फा स्क्वायर, तो बीटा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर. 2 से 2 कैंसिल तो अल्फा क्यूब. और गामा you know gamma of n is equal to gamma of n plus 1 equal to n gamma n. So gamma of 3 by 2 equal to 1 by 2 gamma of 1 by 2. So gamma half I just told you root pi. Simplification calculation
अल्फा स्क्वायर आई जस्ट टोल्ड यू रूट के एम बाई एच बार, सिंप्लीफिकेशन ये रूट के बाई एम, के इज ऑलवेज एम ओमेगा स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, तो 1/4 एच बार ओमेगा। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन, यूजली स्टूडेंट इसका आंसर गलत लिखते हैं, 1/2 एच बार ओमेगा लिखते हैं, नो इट इज 1/4 एच बार ओमेगा। Let me tell you, this is V average, expectation value of V is 1/4 h bar omega, 1/4 can be written as half into half, and half h bar omega ground state में आप जानते हैं टोटल एनर्जी का फार्मूला हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता था, n प्लस हाफ इंटू एच बार ओमेगा, दिस इज टोटल एनर्जी, एंड ग्राउंड स्टेट में हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, n जीरो हो जाएगा, n की वैल्यू जीरो रखेंगे तो टोटल एनर्जी विल बी हाफ एच बार ओमेगा, हाफ एच बार ओमेगा इज वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, 1/4 एच बार ओमेगा इज एवरेज पोटेंशियल एनर्जी या एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ एच बार ओमेगा इज टोटल एनर्जी। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी फॉर when harmonic oscillator is in ground state, then expectation value potential energy is equal to half of total energy। इस प्रकार से क्वेश्चन भी हो सकता है, ग्राउंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्राउंड स्टेट ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हो सकता है वो वेव फंक्शन आपको ग्राउंड स्टेट में दे दें, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है क्योंकि हमने वैल्यू निकाल ली थी, और सो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इन ग्राउंड स्टेट आपको ये दिया होगा, दिस इज normalized wave function of harmonic oscillator in ground state, this is normalized wave function of harmonic oscillator in ground state, this is normalization constant, this is Gaussian function, और हर्माइट पॉलिनोमियल ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू 0 के लिए 1 आया था। क्वेश्चन ये आ गया, कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर। अभी हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ v निकाला, ही में आस्क यू फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो मैं वर्कआउट कर ही देता हूँ। हालांकि सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट डेल्टा एक्स डेल्टा पी इन द ग्राउंड स्टेट वेयर डेल्टा ए फॉर एन ऑपरेटर ए इज डिफाइंड एज डेल्टा ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले लेट मी अटेम्प्ट फर्स्ट पार्ट, हाउ टू इवेल्युएट एवरेज वैल्यू पी स्क्वायर। जब मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी वर्कआउट करके दिखा दिया, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, जस्ट प्रूव किया। और हम सब जानते हैं हाफ एच बार ओमेगा, हाफ एच बार ओमेगा इज टोटल एनर्जी, हाफ एच बार ओमेगा इज टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी यू नो पी स्क्वायर ओवर 2m, लेकिन एक्सपेक्टेशन वैल्यू है तो पी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 2m, दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू काइनेटिक एनर्जी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी विच इज टोटल एनर्जी। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी हैज ऑलरेडी बीन वर्कड आउट, पी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 2m, ये उस तरफ जाके माइनस, तो हाफ माइनस 1/4 इज 1/4 एच बार ओमेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, पी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू इज हाफ m एच बार ओमेगा। सो ये आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। क्वेश्चन वर्क आउट हो गए। ही मे व्हेन आस्क यू फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंपल, एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। अब देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी को वर्कआउट करने के बाद कई चीजें निकाल ली जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी निकाला, जो मैंने 1/4 एच पर ओमेगा हाफ ऑफ टोटल एनर्जी प्रूव किया, और ये कहा कि टोटल एनर्जी काइनेटिक की एवरेज वैल्यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू, ये मेरे को पता है, पी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकल गया। अब देखिए अमेजिंग इज एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू भी आ जाएगा। कैसे? एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, छोटा सा ट्रिक, 2a के हाफ के, क्योंकि 2 कैंसिल, के कैंसिल, और ये हाफ के एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, हाफ के एक्स स्क्वायर यू नो इट इज पोटेंशियल फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो ये v, और ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का सिंबल
2y और एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी मैंने अभी तो बताया, वर्कआउट किया 1/4 h बार ओमेगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का एवरेज वैल्यू इज h बार ओमेगा बाई 2k। पी स्क्वायर का एवरेज वैल्यू ये आ गया। एक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हो गया, एक क्वेश्चन पी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हो गया, एक क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू, बस काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू पूछेंगे तो 2m से डिवाइड कर देना। आर यू वेटिंग? काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू में 2m से डिवाइड कर दोगे, वो भी 1/4 h बार ओमेगा आ जाएगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज भी 1/4 h बार ओमेगा, काइनेटिक का एवरेज भी 1/4 h बार ओमेगा, टोटल एनर्जी इज हाफ h बार ओमेगा। एक्स स्क्वायर का एवरेज मैंने आपको लिख दिया। सेकेंड पार्ट में अभी जस्ट मैं इसको रब करके करता हूँ। थैंक यू।